मैंने कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी अभी तक नहीं देखी जो फोकस करे मोटर स्पोर्ट पे, है ना। हाँ, छोटी छोटी क्लिपिंग्स जरूर शोकेस करी जाती हैं जस्ट टू शो द हीरोइज्म ऑफ द एक्टर, बिकॉज ड्रिफ्टिंग इज अ वेरी ओल्ड आर्ट which was originated from Japan. Then it trickled down to Malaysia and Thailand, जहाँ पे अभी भी फॉर्मूला ड्रिफ्ट चैंपियनशिप होती हैं. हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रितिका एंड वेलकम टू द कानपुर स्टोरीज पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने ड्रिफ्टिंग के पैशन को अपने प्रोफेशन में बखूबी तब्दील किया एंड इज अ फॉर्मूला ड्रिफ्ट चैंपियन, a musician by the strings of his guitar and a drifter by his BMW M3. Please welcome Mr. Vikas Shukla. Hi Vikas, welcome to the Kanpur Stories. Hello, thank you. So first of all, beginning with the motorsports. Motorsports actually है क्या? So, motorsports is like any other sport, is something which we all do from our childhood. So, when we are kids, when we are, really growing up, we find out ways to feel happy, right? That's how, kids play. That's why kids play, and they find out their passions in the things they enjoy the most. As they grow up, they understand that there are a lot of things which happen automatically. And motor, if you say, a motor is something which is mechanical. True. And when you start having fun with a motor, it becomes a motorsport. As simple as this. There are a lot of things that come under the umbrella of motorsports. And of course, all these things are played around with some motor vehicle, right? It could be two-wheelers, it could be four-wheelers, it could be three-wheelers, it could be one wheel as well. So any child who is fond of playing football, cricket, hockey, volleyball, whatever sport you want, if he's loving having fun with a motor, it becomes a part of motorsports. So if you see a ball, how many sports can you play with a ball? I mean, there are a number of sports you can think of playing with a ball. Same happens with wheels. There are a lot of sports that you can play around with wheels. And all those come under the umbrella of motorsports. We only know Formula 1. We only know MotoGP. MotoGP is with motorcycles. Formula 1 is with four wheels. But there are a lot of things which people enjoy with wheels. And every bit of it is motorsports. So to name a few things which people generally know about motorsports is racing cars, is, a lot of off-road events where you can take your 4x4s and go into desert. You must have heard of World Rally Championships where you take off-roading vehicles to deserts and, the
surface as mean, the roads are not that smooth, but you have to cover a distance from point A to point B in a particular seconds or minutes of time. Racing is a part of it. Then there comes a lot of, I would say, acrobat. People call it with a very low term, they call them stunts. But then that is a very commoner's word I would use. It's an art. Whenever we address somebody as a, we see or we hear a lot of small talks about people doing stunts. I don't really agree to that. It is disrespecting. Mm-hmm. That gentleman or that lady over there is trying to show an art. He's not doing stunts. He has practiced days, nights, has broken his arms, legs, head, whatever. And that happens in all kinds of sports. If you're facing a cricket ball, which is coming to you at a speed of 100 kilometers, you're also at a threat, right? You're sitting on a motorcycle, you're trying to do a wheelie. That requires a lot of balance. If you're trying to do a stoppie on a front wheel, that requires a lot of skill, a lot of practice, and a lot of balance as well. So whenever anybody tries to do something with a motor, it comes under motorsports. So since you talked about the stunts, how is motorsports different from the stunts that we see in the cinematic world, like in Bollywood films or Hollywood films? How are they different in the real life? See, those things are just presented to you for entertainment, right? And that is where the term stunts come from, because it is a very old thing to do, because why do you portray somebody? If you see, okay, let's come back to James Bond, right? That's where we all started seeing the stunts which 007 used to do. Why do you portray him as a hero? Because he's doing something which is like an art, and he's doing it on a motor car or a motorcycle. He's able to perform that art. And we know that the gentleman behind the wheel is not James Bond. He is some expert who's trying to do that scene. And you call them as stunts. In real life, motorsports is timed, right? There is a set way of skill that is being shown over there. But in real life, हम लोग को पता है कि वो जेम्स बॉन्ड ने खुद नहीं करा है, वो एक ऐसे skillful person ने करा है who has excelled in this art. तो उसको हम लोग वो stunt का नाम देते हैं. But then car flipping is a completely different skill and art, which requires a lot of practice and yes. तो जो हम लोग movies में देखते हैं, they are all part of small little aspects of motor arts, I would say, कि उसमें अगर कार ड्रिफ्ट कर रही है या कार फ्लिप कर रही है या मोटरसाइकिल जंप कर रही है, तो it is all done by some expert or a sportsman, I would say, which has been replaced for that particular scene in that particular movie. If we come to the movie, since you mentioned, जो movie हम लोगों ने हॉलीवुड की देखी होगी, आपने भी देखी होगी, फास्ट एंड द फ्यूरियस, उसमें they had shown an art which was originally a Japanese art which is called drifting. So drifting is an art where you take the car sideways instead of taking it, in the front. You have to slide the car. Now sliding is an art in itself. And बहुत सारी movies में, हॉलीवुड में हम लोगों ने उसको चेंज क्या मतलब, उसको हम लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी है. रोहित शेट्टी जी की बहुत सारी मूवीज में हम लोगों ने उनको देखा भी है. बट यस, फास्ट एंड फ्यूरियस में जो हम लोगों को दिखाया गया था, इट वाज लाइक प्रमोटिंग ड्रिफ्टिंग इन अ वे कि यस, दिस इज ऑल्सो एन स्पोर्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ स्पोर्ट, एंड इसको हम लोगों को प्रोफेशनली सीखना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड दैट public safety is primary. One should not try to do it on a public road, which becomes very risky. तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि how it is different, बॉलीवुड मूवीज में तो I haven't मैंने कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी अभी तक नहीं देखी जो फोकस करे मोटर स्पोर्ट पे
है ना. हाँ, छोटी छोटी क्लिपिंग्स जरूर शोकेस करी जाती हैं जस्ट टू शो द हीरोइज्म ऑफ द एक्टर रादर दैन promoting the sport in a very cultured manner. Now, since you mentioned the term drifting and you are a well-known drifter, तो आपकी इधर से शुरुआत कैसे हुई थी? Why did you begin with drifting? So, मतलब बचपन से ही मुझे since childhood I was very fond of motorsports myself. Okay. And motorsports में इतनी सारी चीजें होती हैं करने को and you have to choose your calling. मतलब वो अंदर से आता है कि आपको करने का क्या मन है. तो सबसे पहले अगर किसी से पूछें कि आप मोटर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड कि आप रेसिंग करेंगे, है ना. आपको कार तेज चलानी होगी या आपको रैली में जाना होगा. तो इन सब चीज़ों के लिए अभी हमारी कंट्री में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लो है. अगर आपको रेसर बनना है तो आपको पता नहीं रेसर बनना कैसे है. जनरली हम लोगों ने बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स देखे हैं कार रेसिंग के इंडिया में और अभी भी हो जाते हैं. तो हम लोग को उतनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है मोटर स्पोर्ट्स के बारे में. तो व्हाट आई डिड, आई वांटेड टू लर्न ड्रिफ्टिंग सिंस माय स्कूल डेज. Okay. Because drifting is a very old art which was originated from Japan. Then it trickled down to Malaysia and Thailand. Okay. जहाँ पे अभी भी फॉर्मूला ड्रिफ्ट चैम्पियनशिप होती हैं. एंड मैंने वहीं जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी एंड आई बिकेम द फॉर्मूला ड्रिफ्ट चैम्पियन देयर ओनली. एंड अनफॉर्चुनेटली 2020 में आई वॉज सपोज टू take part there in their Formula Drift Championship, but because of COVID, I could not attend that. Oh, okay. So, like, आपके initial days जब आपने शुरुआत करी थी, तो I'm sure you must have faced a lot of struggles. तो वो क्या थे और how did you overcome those? Okay, तो I'll just give you a brief background कि why do people shy away from motorsports? Okay. तो 2-3 चीजें होती हैं मोटर स्पोर्ट्स का ख्याल आते ही मन में कि पहली बात तो ये एक्सपेंसिव होगा. वेरी ट्रू. अब मोटर स्पोर्ट्स में बगैर मोटर के तो आप कुछ कर नहीं सकते. यू नीड टू हैव अ कार और अ बाइक विच इटसेल्फ विल बी एक्सपेंसिव. सो आई फाउंड आउट कि मेरे को जिस स्पेसिफिकेशन की कार चाहिए वो चीपेस्ट कार हम कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं अपने आप को. एंड दिस इज व्हेन आई वाज इन माय स्कूल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन लेट 90s और अर्ली 2000s. हम लोग के पास तब बहुत ज़्यादा कार्स के ऑप्शंस नहीं होते थे. बट वी वर लकी इनफ कि हम लोग के पास जो कार्स के ऑप्शन थे मोस्ट ऑफ देम वर रेयर व्हील ड्राइव कार्स. जब मैं बोलता हूँ रेयर व्हील ड्राइव कि कार का जो इंजन है वो आपके कार के पीछे वाले पहियों में पावर देता है. दैट इज कॉल्ड अ रेयर व्हील ड्राइव. और जो आज मोस्टली कार्स आती हैं वो सब फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स होती हैं जिसमें आपके कार का जो इंजन है वो आपके आगे वाले पहियों को पावर देता है. ये ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि इससे वेट रिडक्शन होता है कार एवरेज ज्यादा देती है. सो इट इज मोर इकोनॉमिकल, इट इज it is cheaper to build those cars, front wheel drive cars. So anyways, back then those cars had enough power to slide. तो मैंने स्लाइडिंग करना सीखा था in a very humble Premier Padmini Fiat car जिसको बोलते थे हम लोग. We used to have it in our family. तो it was a rear wheel drive car and इतनी पावर नहीं भी होती थी तो भी the technique which was applied वो सेम ही होती है. Okay. तो I realized कि you don't really need to have an expensive machine. If you have the skill, if you have the dedication, अगर आपका मन है, अगर आपके इच्छा है और आप किसी चीज का निश्चय करते हैं कुछ करने के लिए और सबसे बड़ी बात वो चीज करने में आपको बेहद आनंद आ रहा है, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं. True. जब 2000s में मैंने ड्रिफ्टिंग के बारे में पढ़ा था, जापान में होती है, तो लोग सबसे पहले सोचते थे कि आई नीड अ
वेरी फैंसी JDM कार. JDM मतलब जापान डोमेस्टिक मार्केट में जो कार्स होती थी उनको JDM बोलते हैं हम लोग. तो you need to have a Toyota Supra or you need to have a Toyota AE86 or Nissan GTR and the line goes on कि बहुत सारी फैंसी कार्स होती थी. पर कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हो आप अपनी खुशी के लिए खेलते हैं. गली क्रिकेट क्या है वही है. एंड वी डोंट सी वेरी रिच गाइज प्लेइंग इन गली क्रिकेट, है ना. नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी खुश रहते हैं. बच्चे एक सिंपल सा बैट लेके गली में क्रिकेट खेलते हुए उनके चेहरे पे मुस्कान रहती है. 2-4 घंटे अपना ग्रुप बना के सस्ते से सस्ती बॉल ले लेंगे, सस्ते से सस्ता बैट ले लेंगे और आराम से दिन भर गली क्रिकेट खेल के एकदम फ्रेश हो जाएंगे. तो यू डोंट नीड अ फैंसी किट टू enjoy your sport. Basically you can enjoy your sport with whatever resources you have. And I had a Premier Padmani Fiat car and I started learning drifting on that. So it's actually pretty safe to say that लोग जो मानते हैं that it's meant for people who are born with a silver spoon in their mouth, ये actually बस एक preconceived notion है. And अगर कोई genuinely चाहता है तो वो कर सकता है इसको आगे pursue as a career. जी हाँ. प्राइमरीली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मोटर स्पोर्ट में यू शुड हैव अ मोटर. अब वैसे अगर आप देखें कि एक बैट और बॉल सस्ता आएगा या एक कार सस्ती आएगी तो ऑफ कोर्स कार थोड़ी सी महंगी तो आएगी जरूर, राइट. बट आज के जमाने के अगर हम लोग बात करें, वी आर सिटिंग टुडे एंड वी शुड टॉक इन द प्रेजेंट टाइम. अ गुड रेयर व्हील कार comes in a range of around 50,000 rupees. 50,000 रुपए में आपको एक ठीक ठाक सी रेयर व्हील ड्राइव कार मिल जाती है और आप उसमें ड्रिफ्टिंग करना सीख सकते हैं. तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा महंगा स्पोर्ट तो नहीं है, पर हाँ ये इसमें इतना किट तो चाहिए होता है कि अगर आप मोटर स्पोर्ट में जाना चाहते हैं तो कम से कम एक मोटर होनी चाहिए आपके पास जिसके साथ आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकें. आज के दिन एक अच्छी मोटरसाइकिल भी आप लेने जाएं तो मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार रुपए से कम की नहीं आती. उसके आधे में अगर आपको एक रेयर व्हील ड्राइव कार मिल जाती है तो आई थिंक यू कैन परस्यू दैट. एंड इफ यू हैव द पैशन एंड द विल टू डू इट, यू कैन सेव अप फॉर अबाउट साल भर मेहनत करो, सेव करो. 50,000 रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन. That's pretty true. And like motorsports is a pretty offbeat career. तो इसके अपने क्या struggles and setbacks हैं as a career option? स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत ही अंडररेटेड है. True. इनफैक्ट आज से 20 साल पहले तक क्रिकेट को छोड़ के कोई और स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को जाने ही नहीं देना चाहता था कि यार इसमें करियर बन भी जाएगा तो पैसा तो कमा नहीं पाओगे. बहुत सारे स्पोर्ट्स इसीलिए लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं देते हैं क्योंकि इसमें पैसा नहीं है. स्पोर्ट्समैन बन भी जाओगे तो जब तक नेशनल लेवल तक रिकग्निशन ना मिल जाए, आप नेशनल लेवल हो भी जाते हैं तो भी जब तक रिकग्निशन नहीं मिलता आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती. आप जाइए या तो ओलंपिक मेडल लेकर आइए तब आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगी. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स कि गोल्ड मेडल विनर्स भी सब्जी का ठेला लगा लेते हैं बैंड में जाके. सो स्पोर्ट्स इन इंडिया इज वेरी अंडररेटेड. वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स in our country than excelling in sports. और जहाँ तक मोटर स्पोर्ट्स का सवाल है, मोटर स्पोर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि it's at the lowest of the levels in sports, motor sports in India. The infrastructure, the government also does not really shows interest in motor sports. हम लोगों के यहाँ बहुत ही शानदार F1 ट्रैक बना, बुद्ध सर्किट, and it was a venture by a private businessman to promote sports. And it was very unfortunate that we could only host one event in India of F1 racing. And उसमें बहुत सारी लीगैलिटीज़ और बहुत सारे लीगल एंगल्स आ गए दैट वी कुड नॉट टेक इट फर्दर. उसके बाद से वी कुड नॉट हैव हैड एनी इवेंट देयर. बट लकीली नाउ MotoGP हैज़ agreed to have an event. MotoGP is for motorcycles and F1 as I said कि वो कार्स का होता है. तो
थोड़ी सी सरकार की तरफ से नरमी चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है, टैक्स में थोड़े से रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं आपको जब आप कोई भी इवेंट इंडिया को में होस्ट करने के लिए, एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए लाना चाहते हैं। बिकॉज इसमें बहुत सारी कार्स इंपोर्ट होती हैं, फिर वही कार्स वापस भी चली जाती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें सेम प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन होना चाहिए, या देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर इन्वॉल्व कि जिस वजह से F1 दोबारा नहीं हो पाया। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहे तो कर सकती है, पर यू नो आवर कंट्री सो बिग दैट वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स रादर देन प्रमोटिंग मोटर स्पोर्ट्स। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। वॉट यू नीड इज़ प्रैक्टिसिंग द स्किल। अगर आप टू व्हीलर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन वेरी वेल स्टार्ट विद अ साइकिल, you can very well start with a very humble two-wheeler. See, it is not about the kit that you are using, it is about developing a skill. मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मोटर स्पोर्ट्स में आना चाहता था तो कार was not my first choice. My first choice was a two-wheeler because those were of course cheaper. They used less petrol and they were lighter and they were more accessible. कार पूरी फैमिली में एक होती थी, मोटरसाइकिल्स तो 2-3 होती थी, तो यू कुड गेट योर हैंड ऑन टू वन। तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ ऑफ रोडिंग ऑन माई Yamaha RX100 विच आई स्टिल हैव। तो एंड आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मॉडिफाई करके उसको खुद ही उसमें देख देख के क्या कर सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज द ब्रेक स्ट्रेंथ, या उसकी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या किस तरीके से इसमें हम इंजन में ज़्यादा बूस्ट पैदा कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ टर्बो इन मोटरसाइकिल। तो इंटरेस्ट की बात होती है। देयर इज द मनी ऑफ कोर्स इज देयर, बट इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर विच प्लेज अ मेजर रोल। जहाँ चाह वहाँ राह वाले कंसेप्ट में आपको जिस चीज़ में मज़ा आएगा आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो एज फार एज द मनी इज कंसर्न्ड, इट इज़ नॉट अ deterrent in your growth for motorsports. The only thing that I feel is missing is a playground for motorsports fraternity. जो हम लोग के पास ट्रैक्स हैं या जो हम लोग के पास जगह हैं वो sufficient नहीं हैं, और जो हैं भी वो थोड़ी सी expensive होती हैं क्योंकि उनका मेंटेनेंस महंगा होता है। या if there is a group of people who can, you know, find out a secluded area, they can cordon off a place and they can have a playground over there. Apply full safety and then start playing. जैसे हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं तो हम लोग बीच रोड में क्रिकेट खेलना नहीं शुरू कर देते हैं. We find a place and then we start playing cricket. So the same way, if you have to learn motorsports, you find a place, you start practicing there. In whatever field in motorsport you want to go, be it two-wheeler or four-wheeler, आपको off-roading करनी है, आपको racing करनी है, आपको in fact there is a new branch which has now become a part of motorsport is auto tuning, auto modifications. Okay. So if you are not into, you know, in the mainstream driving, you can get into, you know, behind the scene. Like, you know, fitness of the car, increasing the efficiency of the car, increasing the power of the car, increasing the brakes of the car. So जैसे आप पावर इंक्रीज करेंगे कार की, ऑफ कोर्स आपके ब्रेक्स भी इंप्रूव होने चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट दैट इट इज वन वे, इट हैज टू बी बोथ वेज. आप पावर बढ़ा रहे हो तो आप ब्रेक भी अच्छा करो. तो आई मीन दैट दिस ब्रांच हैज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ मोटर स्पोर्ट्स नाउ. सो ये तो हो गई इंडिया की बात, एंड लाइक यू सेड कि इंडिया में भी अभी मोटर स्पोर्ट्स एक एस्टैब्लिश्ड करियर नहीं है. एंड सिंस यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर, तो कानपुर के लोगों को अगर मोटर स्पोर्ट्स में एंटर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? ओके, तो मोटर स्पोर्ट्स में एंटर करने के लिए सबसे पहले तो हमको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हमको मोटर स्पोर्ट्स में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है. कोई भी मोटर से आप जब खेलना शुरू करते हैं तो कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, वही आपकी राह आपको
चूज करके देगा। अगर आपको टू व्हीलर्स अच्छे लगते हैं तो आप टू व्हीलर को बैलेंसिंग के आर्ट से जोड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी व्हीलीज हो गई, या आपका ब्रेकिंग हो गई, या आपका बैलेंसिंग हो गया। एंड अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी हो तो आपने देखा होगा कि हम लोगों के आर्मी के लोग एक बुलेट मोटरसाइकिल पे खड़े होके चलाते हैं एंड उसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं। एक मोटरसाइकिल में 40-40, 50-50 लोग बैलेंस कर लेते हैं एंड फिर जो राइड कर रहा होता है वो भी हाथ अपने छोड़ देता है। तो आई मीन यस, इट इज़ एन आर्ट एंड आई डोंट कॉल इट स्टंट्स बिकॉज आई कॉल इट आर्ट ओनली। तो इसमें मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको क्या चीज़ एक्साइट सबसे ज़्यादा करती है टू व्हीलर में। टू व्हीलर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रेसिंग हो गई, बैलेंसिंग आर्ट्स हो गए, स्टॉपिंग आर्ट्स हो गए, ड्रिफ्टिंग हो गई, मोटरसाइकिल में भी ड्रिफ्टिंग होती है, रैलीज हो गई, रेसिंग हो गई, एंड व्हाट एल्स कैन वी डू, या मॉडिफिकेशन हो गया, राइट। सो इसमें से विच पार्ट एक्साइट्स यू मोर, एंड द सेम हैपेंस फॉर फोर व्हीलर्स ऑल्सो, कि आपको इन अ कार विच पार्ट ऑफ द स्पोर्ट are you feeling the most happy about? I mean, you are a person who really wants to go the fastest, or you want to show some kind of art, like drifting is an art, and or if you want to show some other kind of arts in balancing as well. I mean, there are people in India who can drive a four-wheeler on two wheels. So वो भी आप कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कार्स के साथ यू कैन ऑफ कोर्स रैलिंग इज वन थिंग, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इट ऑफ रोड, ऑन रोड, राइट, फोर व्हीलिंग। तो विच पार्ट ऑफ द स्पोर्ट with respect to a motor excites you the best? And once you start practicing on that, practice तो आप अकेले भी कर सकते हैं. The only thing which I would say कि practice in a very safe and secured area where there are no public interferences. या तो आप कोई पार्क में कर लें, या फिर आप कोई बहुत सेक्लूडेड एरिया में कर लें जहाँ पे रोड चलती नहीं हो, सन्नाटा हो. ऐसे टाइम पे करें जब भीड़ नहीं हो. उस एरिया को थोड़ा सा कॉर्डन ऑफ कर दें, अपने साथ एक दो लोगों को ले जाएं जो उधर आने ना दें लोगों को. तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट. ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड विथ यू बिकॉज डैमेजेस डू हैपन लाइक इन एनी अदर स्पोर्ट. तो एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट देन यू वुड डेफिनेटली वांट टू compete with someone. अगर आपने अगर आपको रैलिंग का शौक है एंड इफ यू फाइंड आउट अ स्ट्रेच की from point A to point B हमको जाना है, तो you would not always want to compete with yourself. You would want a partner to compete with you, or you want a team. So find out different like-minded people. Make some pages on the Facebook page कि भाई कानपुर में अगर आपको बनाना है तो have a Facebook page, have a community where you can involve other like-minded people and start playing it. So as you said कि मोटर स्पोर्ट्स एक सेफर इन्वायरमेंट में हो तो ज़्यादा अच्छा है. अच्छा, मोटर स्पोर्ट्स को जनरली रैश ड्राइविंग के साथ भी एसोसिएट किया जाता है. सो इज दैट रियली ट्रू, या फिर वो एक्चुअली हेल्प करती है सेफर ड्राइविंग में? So yeah, as you rightly said, on the contrary, anybody who is into motorsport is a better driver than the rest of us. Okay. Because once you understand the motor, what you are trying to do is control the motor in a particular manner. अगर आप कार तेज भी चला रहे हैं, if you are a racer, you obviously are in control of the car, right? And you know the best how to control the car in that particular speed. That's true. If you're going on an off-roading track, then obviously you are better equipped to handle a car than a layman. Why do accidents happen with people who are driving rash is because they try to be whom they are not. लोगों ने Fast and the Furious देखी, फिर उसके बाद they started drifting without learning the art of drifting properly. So accidents will happen because what you see
is something which somebody has practiced and mastered. उसको आप देख के imitate नहीं कर सकते. You cannot win a chess game by looking at somebody who's playing chess. So it is like that कि somebody who is trying to imitate someone, copying someone and just feeling कि अगर कोई ऐसे चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूँ, उस वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं. Without practice, without getting the whole understanding of the machine, the concept, क्योंकि एक मोटर स्पोर्ट, कोई भी मोटर स्पोर्ट मतलब किसी भी मोटर स्पोर्ट को एक्सेल करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट. कि जैसे मैं ड्रिफ्टिंग करता हूं तो आई एम प्लेइंग विथ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? तो you have to understand the weight of the car, the speed of the wheel spin, the kind of centrifugal force that will help me spin the car, at what angle I should take the car, and then a lot of other things like how much you can rev the car, कि आप कार के इंजन को किस स्पीड तक ले जा सकते हैं, किस स्पीड तक आप कार के इंजन को ले जाएंगे तो व्हील स्पिन कितने स्पीड में होगा. तो there is a lot of science behind it in every kind of motorsport. कोई अगर टू व्हीलर वाला बंदा स्टॉप ही कर रहा है ऑन द फ्रंट व्हील, उसको ये पता है कि मेरे को इतनी स्पीड में जाना है, इतना प्रेशर अप्लाई करना है, मेरी बाइक का वेट इतना है, मेरा वेट इतना है, मैं किस हिसाब से इसको बैलेंस करूं कि मेरी बाइक जो है वो 45 डिग्री एंगल पे आके स्टॉप हो जाए और फिर वापस बैलेंस होके सीधी हो जाए. तो ऑफ कोर्स जो इंसान को इतने अच्छे से अपनी मशीन पता होगी, उसका एक्सीडेंट का पार्ट होना इज वेरी डिफिकल्ट. ऐसे लोग जो एमेच्योर हैं, इन लोगों को देख के जो इमिटेट करते हैं ऑन पब्लिक रोड्स, उनके ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं रादर दैन somebody who is thoroughly professional. So I would say somebody who is a genuine sports person in motorsports, the chances of accidents are rare. That's very true. I completely agree to that. And as you said, लोग अक्सर देख करके इमिटेट करना चाहते हैं and they are not into really learning. So जब आप सीखने के लिए गए थे, you went to other countries and since इंडिया में उस टाइम पे भी चीज़ें इतनी ज़्यादा मोटर स्पोर्ट्स को लेकर के पॉजिटिव नहीं थी और शायद कहीं ना कहीं आज भी नहीं है, तो उधर जा करके जब आपने बाकी लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा who came from other countries, तो आपको क्या फीलिंग आई थी? Like did you feel कि you were still lagging behind them? ये फीलिंग बहुत ज़्यादा एविडेंट थी. मैं मलेशिया में था एंड दिस वाज कुआलालंपुर का एक सबर्ब है और वहाँ पे हर 5 किलोमीटर पे एक गो कार्ट ट्रैक बना हुआ था. Okay. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वर एट लीस्ट 10 go-kart tracks in a radius of about 20 kilometers. 20 किलोमीटर के दायरे पे कम से कम 20 go-kart tracks थे. एंड मोटर स्पोर्ट्स का एक कल्चर देखने को मिल रहा था वहाँ पे कि कोई भी इंसान जिसको स्पोर्ट्स का ख्याल आता था तो मोटर स्पोर्ट्स वाज वन ऑफ द ऑप्शंस वहाँ पे लोगों के पास. हम लोगों के यहाँ तो मोटर स्पोर्ट्स किसी के दिमाग में ही नहीं आता. अगर कोई बच्चा बोलता भी है कि मुझे कुछ स्पोर्ट्स में करना है तो मोटर स्पोर्ट इज नॉट देयर एट ऑल. तो एक कंट्री का एक वाइब होती है, एक जैसे हम लोग की कंट्री में वाइब है क्रिकेट की, विच इज वेरी एविडेंट. सबको पता है क्रिकेट क्या होता है. और तो वहाँ पे एक वाइब है इन मलेशिया मोटर स्पोर्ट्स की. तो इसी वजह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही बने हुए हैं. दे आर नॉट गवर्नमेंट्स, दे आर प्राइवेट ओन पीपल जिन्होंने अपने अपने गो कार्ट ट्रैक्स बनाए हुए हैं और उन्हीं गो कार्ट ट्रैक्स में वहाँ पे मोटरसाइकिल्स भी रन करती हैं, गो कार्ट्स भी करती हैं, आपकी फार्मूला कार्स भी होती है, नॉट F1s बट छोटी फार्मूला कार्स होती हैं. वो लोग भी वहाँ पे उसकी रेसिंग कराते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी. हम लोगों के यहाँ गो कार्ट ट्रैक्स हैं तो पर उतना लोगों में जागरूकता नहीं है आई वुड से. और उस जागरूकता की वजह से
उनका जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है वो काफी कम रहता है. वो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कम रहता है इसलिए उनके रेट्स ज्यादा रहते हैं. सो इट इज लाइक अ विशियस सर्कल कि हम लोगों के यहाँ उतना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसी वजह से उतना हम लोगों के पास एनवायरनमेंट नहीं है. हम लोग के पास प्लेग्राउंड्स तो बहुत सारे हैं जहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी ये सब खेल सकते हैं, पर हम लोग के पास उतने रेसिंग ट्रैक्स या गो कार्ट ट्रैक्स नहीं है जहाँ पे हम लोग कॉमनली आराम से जाके कार चलाना सीख भी सके. इनफैक्ट हम लोग के यहाँ तो कार सीखना भी एक इशू रह जाता है कि देयर आर नो प्रॉपर ट्रैक्स टू इवन लर्न द कार. तो मोटर स्पोर्ट तो इज अ लॉन्ग थिंग टू डू. तो यस, जब मैं मलेशिया गया तो मुझे ये चीज़ बहुत ही एविडेंटली दिखी कि यहाँ पे मोटर स्पोर्ट एक प्राइमरी स्पोर्ट है कि जहाँ पे लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं. और उसमें कोई बहुत जैसे हम लोगों के यहाँ हर आदमी जो उसको क्रिकेट देखना खेलना अच्छा लगता है वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनते हैं, बट दे जनरली वॉच इट एंड दे प्ले इट जस्ट फॉर फन. वहाँ भी ऐसे ही है कि दे गो टू द गो कार्ट ट्रैक एवरी संडे या एवरी वीकेंड, है ना, जस्ट ड्राइव इट द गो कार्ट्स और द एफ cars there, formula cars there, or the bikes or whatever they wish. Enjoy the day for 3-4 hours and come back. So it is like a primary sport in Malaysia, but हम लोगों के यहाँ ऐसा भी नहीं है, and it's gonna take a while. Absolutely, and like that was pretty insightful to know about the other country. And like so you are into drifting since so many years. तो आपके साथ कभी कोई ऐसा खतरनाक कोई चीज हुई हो या कोई भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं स्पेसिफिकली ड्रिफ्टिंग में? जी हाँ, जैसे क्रिकेट में हर बॉल पे सचिन जी छक्का नहीं लगा सकते, हम लोग भी आउट हो जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जब हम ऑफ कोर्स जब लर्न कर रहे थे तब तो बहुत सारे ब्लंडर्स हुए थे. और लर्निंग के बाद भी व्हेनेवर यू आर गोइंग on the track to drift a car, every experience is different. तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं. मैं एक बार बुध सर्किट में था एंड there was this particular patch turn 15 पे where I was making a slide and there was a bump on the road और कार का जो लेफ्ट रेयर व्हील है वो उस बम्प पे आ गया एंड कार ने सडनली ट्रैक्शन छोड़ दिया. इट वॉज ऑन द एयर एंड उस वजह से द कार को जो 15 डिग्री का एंगल लेना था द कार सडनली टुक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड यस आई वेंट एंड हिट द बैरियर. तो ये एक मेरे साथ हुआ है और इस तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो आई मीन यस, यू समटाइम्स learn from these things and you have to be very careful and sometimes there are factors which are beyond your control. So of course unfortunate events do happen. Yeah, but the good thing is that it didn't stop you and it's like the spirit of a real drifter. Yeah, I mean any sportsman will not stop by one accident. There is not one sportsman that you can tell me has not suffered physically because of the particular sport. So they don't leave the sport at all. So ये तो हो गई मोटर स्पोर्ट्स में करियर एस्टैब्लिशमेंट की बात कि मतलब आप कैसे इसमें करियर बना सकते हैं. बट इफ यू टॉक इन मॉनेटरी टर्म्स तो कैसे आदमी इससे फंड्स एक्चुअली रेज कर सकता है या फिर कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है बाय द यूज ऑफ मोटर स्पोर्ट्स? ओके, तो जैसा मैंने पहले कहा कि यू हैव टू चूज द काइंड ऑफ थिंग विच एक्साइट्स यू द मोस्ट. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें बहुत ही कॉमन थिंग, we take WRC, that is World Rally Championship. Okay. तो इसमें आपको there are various surfaces जहाँ पे गाड़ी चलानी होती. सरफेस मतलब कि वो प्लेन रोड भी होगी, थोड़ा कच्चा रास्ता भी होगा, थोड़ा पहाड़ी भी होगी. वहाँ पे पॉइंट A टू पॉइंट B सबसे फास्ट जाना होता है. इन्हीं में ही रैली चैंपियनशिप्स होती हैं. तो आपको अपना ड्राइविंग स्किल सेट बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा डिफरेंट टेरेन्स के लिए. जब आपको अपना इस चीज में कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई कैन ड्राइव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कार इन अंडरस्टैंडिंग दैट मशीन, कि अगर आप एक जीप चला रहे हैं या एसयूवी चला रहे हैं तो उसको चलाने का तरीका एक सिडान या एक हैचबैक से डिफरेंट होगा, बिकॉज वो कार डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करेगी एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में. जब आप उस चीज को महसूस कर लेते हैं कि नहीं मैंने ये आर्ट एक्सेल कर लिया है, तब इंडिया में
7 या 8 कंपनीज ऐसी हैं जो इस चीज के लिए ड्राइवर्स ढूंढती हैं. ओके. जैसे मारुति सुजुकी, जेके टायर्स, Volkswagen and Mahindra and Mahindra. I guess that's all I can think of right now. But yes, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको और भी मिल जाएंगे. ये तो मेरे फिंगर टिप्स पे थे, तो मैंने बता दिया आपको. Like these are companies which organize regular rally championships within India. Okay. और वहां पे एक अच्छा ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स आते हैं जहां पे वो लोग आपस में compete करते हैं. क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कोई रैली करवा रही है तो वहां पे वो इंडिया के 2 या 3 बेस्ट ड्राइवर्स को लेकर नहीं करवाएगी. वो चाहेगी कि इन लोगों से भी तो लोग compete करें. True. Right? So there is a lot of space in this area जहां पे आप ये चीज कर सकते हैं, और ये चीज इंडिया में चलती है, रैलीज. और ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैं जो कि इसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट कराते हैं लोगों को. सेकेंडली, इफ somebody has to start in getting into motorsports and is generally fond of cars or 4-wheelers or 2-wheelers, the best way to begin is to join a professional go-kart track. Okay. अब इंडिया में 2 ही 3 ऐसी जगह हैं जहां पे प्रोफेशनली गो कार्टिंग सिखाई जाती है, बताई जाती है, और वहीं से ही डिफरेंट लाइन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं. तो इनमें से एक गो कार्ट ट्रैक बॉम्बे में है और एक पूना में है, जहां पे प्रोफेशनली आपको गो कार्टिंग कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ कार, अ बाइक, ये सब चीजें बताई जाती हैं. तो दैट इज वन वे वन कैन स्टार्ट, एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट यस, ऑफ कोर्स इट वुड नीड सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. तो वंस यू लर्न हाउ टू हैंडल अ कार इनसाइड अ गो कार्ट एनवायरमेंट, तो आपको काफी कार बैलेंसिंग के बारे में चीजें समझ में आ जाती हैं. एंड देन यू कैन ग्रेजुएट योरसेल्फ इनटू making it a career, like going in a championship for World Rally Championships. जब आप काफी रैलीज में कार चला लेते हैं तब आपको ये पता चल जाता है कि what all art you can do with that thing, with that particular motor. अगर आप 2-wheeler में हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम इसके साथ किस तरह से बैलेंसिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हैं while stopping or making a wheelie or making a drifting. वही चीज कार के साथ होती है. तो बहुत सारे ऑफशूट्स निकल के आते हैं वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव अ कार इन अ रैली एनवायरनमेंट. ओके. एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट these motor companies who regularly host their own championships within India. Secondly, a lot of motor companies are looking for trained drivers who can really showcase their cars, right? So there is also this part which is there you can make a career into, like you can become a certified trained motor specialist for the big companies, which I know that if you see BMW does have a specialized group of drivers who train you to drive M cars. Okay. Like so इस तरीके के करियर ऑप्शंस काफी निकल के आते हैं if one is interested in making a career. Okay. And like we were talking about कि मोटर स्पोर्ट्स को एक्चुअली सेफ ड्राइविंग से एसोसिएट किया जाना चाहिए, बट ये चीज़ हम अगर कहीं कर रहे हैं तो हम ये प्रशासन को कैसे समझाएंगे? लाइक ऑब्वियसली इट्स देयर ड्यूटी टू आस्क यू क्वेश्चंस एंड टू जज यू और एक्चुअली टू स्टॉप यू, कि मतलब किसी और को हर्ट ना हो, बट वो चीज कैसे टैकल हो सकती है? See, when you are practicing, I am strongly against practicing on public roads. कोई भी प्राइवेट रोड में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, क्या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कानपुर में.
प्राइवेट टाउनशिप्स हैं, हम्म प्राइवेट रोड्स हैं, जहाँ पे आप सेफली अपना किट ले जाके वहाँ पे एरिया को थोड़ा सा कॉर्डन ऑफ करके और वहाँ पे अपना 3-4 घंटे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अपने रोड की आवश्यकता नहीं है। तो ओके अगर आप एक प्राइवेट एरिया में, एक सेक्लूडेड एरिया में कोई अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी कार से, तो इसमें प्रशासन या पुलिस का कोई इंटरफेरेंस होना इज नॉट लीगल। ओके ओके क्योंकि आप एक प्राइवेट लैंड पे अपनी प्राइवेट कार के साथ क्या कर रहे हैं, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग समथिंग विच इज हर्टफुल टू द कॉमन पब्लिक। तो कुछ भी काम करें आप प्राइवेट एरिया में, प्राइवेट रोड में आराम से करें। That's really insightful to know. So Vikas, till now the conversation is pretty smooth. So let's give it a fire and let's enter the world of rapid fire. Yeah. So what's your favorite car to drift? Any rear wheel car is my favorite car to drift. Okay. Yeah. What's your dream car to drift? Wow. So my dream car to drift is in my dreams. I would love to drift rear wheel drive Maruti Suzuki Swift. Oh wow. So what's your favorite racetrack? My favorite racetrack is in Sepang. Okay. And that's near to Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, that's great. According to you, which road is the best to drive in Kanpur? See, if you really want to have a nice time driving in Kanpur, I think the best way is to put up a slow music on your radio and आराम से किसी रिक्शे के पीछे चलिए. I couldn't get any better answer than this. If not a drifter, then what would be Vikas known for? Rapid fire. कभी सोचा ही नहीं था कभी. So, had I not been drifting, I would be modifying cars. Okay. Yeah. Great to hear that. What's your dream country to ride a car in? Berlin, Germany. So ये तो हो गई मोटर स्पोर्ट्स में करियर एज अ जनरल, बट अगर स्पेसिफिकली इन कानपुर की बात करें, सो व्हाट्स योर विजन फॉर मोटर स्पोर्ट्स इन कानपुर अहेड? ओके, तो मेरी अपनी एक मोटर स्पोर्ट्स कंपनी है कानपुर में, TF मोटर स्पोर्ट्स, और इसके अंदर हम लोग बहुत सारी इवेंट्स करते हैं. जैसे हम वहाँ पे ऑटो क्रॉस कराते हैं, कार स्लाइलम कराते हैं, ड्रैग रेस करवाते हैं, ड्रिफ्टिंग इवेंट्स करवाते हैं. तो इस तरीके से एज एन एंटरप्रेन्योरशिप हमने इसको एक टर्न दिया है कि एक आर्ट अगर आता है हमको, तो उसको हम आगे लोगों को कैसे सिखा सकते हैं. तो जो TF मोटर स्पोर्ट अकेडमी है उसमें हम ड्रिफ्टिंग भी सिखाते हैं. वी टेल देम हाउ टू ड्राइव सेफली, वी टेल देम हाउ टू कंट्रोल द कार इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो इस तरीके से काफी चीजें हम लोग TF मोटर स्पोर्ट्स के अंदर करते हैं. सो जैसे कि मैं TF मोटर स्पोर्ट्स एक मोटर स्पोर्ट इवेंट कंपनी रन करता हूँ. इस तरीके से भी लोग अगर चाहें तो अपना एज एन एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर शुरू कर सकते हैं इन स्टार्टिंग अप अ मोटर स्पोर्ट कंपनी वेयर दे कैन ऑफर अ लॉट ऑफ सर्विसेज, ट्रेन पीपल इन द पर्टिकुलर आर्ट दे आर स्पेशलिस्ट एट, and they can form a group and have an organization and make a living out of it. Okay, so like that was really wonderful to know. So that's it for today. With this, it's a wrap. We'll see you in another episode. Yeah, and don't forget to hit like, share and comment down below your favorite segment from this podcast. Till then, this is Ritika signing off. Take care. Goodbye.